Good evening, everyone. I'll ask, maybe you can ask me a few questions. You can drop your name. Maybe let's do some discussion for 4 or 5 minutes. People who really want to ask me some questions, they may raise their hands. I can see 27 attendees at this moment. A lot of you are coming from various places. So maybe we'll start with, I'll allow ask you questions on the yesterday's session and we'll understand more. So, Mridul, you can do help to me, right? Somebody want to ask a question, raise your hand. We'll do 5 minutes Q&A, maybe quick one, some common questions as I try and answer all of you. And just unmute all. Those who want to ask question one by one, maybe Mridul, you can help, right? So I think somebody raised his hand. You may raise your hand again. If you want to ask any questions, you can put something in the Q&A also. I'll try to look at. If I am not able to answer today, I'll answer tomorrow. Good evening. Welcome once again. And let's do 5-7 minutes question answers. I hope there is a QR code visible. Team has given their best effort. A career workbook, which would be the life game changer for all of you. I would request to download. This is just a QR code you have to scan from your device, mobile phone. You can see that PDF book coming to you. You have to keep that book with you, right? And tomorrow I'll request all of you to print that workbook. Actually, maybe Blinkit will cost you to print that and deliver you back hardly about 100-200 rupees. But please understand this is going to be the most valuable asset anytime, every time, maybe as your reflection, as your career plan, you can read through. Anyone who want to ask question may raise hand. I'll try and unmute you and you can answer. So we can just allow them in the sequence. Please raise your hands. Is my voice audible? Anybody who want to ask question? Mridul, if you can allow them to speak. Anyone who want to ask question? Thank you, Manu sir. Thanks a lot for your valuable words. Hello, everyone. This is Neha from Student Success Team. So we would like to request you, if you have any questions, as in yesterday's session also, you were having a lot of questions with you. So we would request you to please put your questions in the Q&A chats, and you will get an opportunity to get your answers directly answered by our founder, Mr. Manu sir. So I would request, please frame your questions and be ready with your questions, audience. We are waiting for your questions. Okay, Sumant Segu, you want to say something? You want to ask something? We are waiting for your questions. Please type your questions in the chat. So I think people want to know more. Hi, Sumant, anything that you want to ask? You can type there. Anyone who want to ask anything? Quickly. Is my voice audible? Yes, sir. It is clearly audible, Manu sir. Yes. I think people are more keen to start the session with the whatever time window we have. Sir, we have a question, I guess. Okay, Ms. Sumant, you were saying that you were unable to join yesterday's session. Okay. Sumant, my team will ensure to share the video link. All of participants, we are just updating the entire recording, some editing. We wanted to ensure that you all have a workbook also. We want to make this a journey as a career rewarding change for you, what career you want to expect. So they'll ensure to share that shortly with all of you. You'll get a video recording as a private YouTube channel or on the website. You'll be able to see that. Any open questions other than that? I guess, Manu sir, we are good to start because till now, I guess our audience is still thinking about the question. Okay, we have one question. All right. I would say don't rush anybody who is asking for S4HANA. First, you look at what we have to offer. That's what I'm trying to make you understand. Today, with the Udemy or YouTube or the kind of content which is available with help of AI tools, you really need not to invest initially in the career as your investment going to all these institutes.
There is lot more you need to prepare, which you need to understand that people do not hire you as SAP, SD, FICO consultant anymore. They hire you with your business skills, which we will make you try and understand. So please listen to today's session at least much more carefully and yesterday's recording also. This is not about any SAP training immediately. First, there is lot more we need to prepare. SAP, I also explained yesterday, or supply chain tools, or Salesforce, or anything, or maybe finance, human resource, whatever we keep thinking. These tools are so easy if we know how to work with it as the problems we have to solve. A learning tool is not more than 30 to 60 days, and then it is all about practice, practice, practice. What anyone has to be concerned about is that you should know as what you have to be focused with, right? So, Ishrat, this is about discovering yourself as in the professional career world, will help you understand what would be an ideal career for you, as you have to decide yourself by knowing you. Today's session is more about discovering yourself as what personality you are. And yesterday we told what are businesses, what are enterprises, how enterprises are running with an efficiency today, what kind of technology, what kind of people, processes we spoke. I hope some of you would have done it. We have explored a lot yesterday in terms of world of work, and the world is changing, we know that. So today we are going to discover the person who has to build that future as getting ready for the enterprise world. That is what our session today is all about, right? I hope, let's move on. Let's go to next slide. QR code would have helped many of you to download workbook. Let's do quickly a recap. Can we go to slide 2? Yeah, welcome back once again, everyone. Yesterday, we actually looked into how an AI and enterprises are reshaping the world of work. We understood as actually what exactly is that change today, right? Today, we will try and understand much more transparently on the other side. Yesterday, we were looking, visualize a camera, right? We were trying to watch, say, the enterprises. We saw much more examples in terms of understanding an enterprise, what enterprise business is all about. We spoke yesterday what kind of systems, technology, what kind of processes they need, what kind of outcomes they expect from people. Today, actually, we have to understand your career profile, which is the most important thing. मैं आपको हिंदी में बहुत सिंपल भाषा में आगे भी समझाऊंगा, और एक बात को मैं रीआइट्रेट करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि एक क्रिकेटर होता है, और वो बचपन में उसको क्रिकेट खेलने का कुछ इंटरेस्ट, शौक आ जाता है. फिर वो उसके ऊपर क्रिकेट के खेलने की, माने उसके पेरेंट्स या वो अपनी इच्छा जाहिर करता है that I want to become a cricketer, right? That's how we understand that we have to do as much as we have to do important things in life. We have to then उसके लिए बाकी सारी चीजों की इंपॉर्टेंट साइड हो जाती है. चाहे आप धोनी को देखो, या आज वो बिहार का एक 15 साल का बच्चा है, उसका करियर में इंटरेस्ट था एज क्रिकेटर, राइट? उसको क्रिकेट खेलना शायद बहुत अच्छा लगता था, और उसके बाद उसने करियर में क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करी टू रीच द करियर हाइट्स एट द यंग एज ऑफ 15, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी विल अंडरस्टैंड from our own perspective, what kind of personality we are, right? First, we'll try to make you equipped enough to take better career decisions, not the faster one, the better ones, right? Fast kuch nahi hota life mein. That is what we have to understand. Discover yourself. और आज जब हम डिस्कवरी समझ जाएंगे, तो कल हम उसको फिर से जब नेक्स्ट सेशन करेंगे, तो आपको एंटरप्राइज करियर्स क्या होते हैं और आपकी पर्सनालिटी उसके साथ कैसे अलाइन करती है, और उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी होती है. Somebody was asking me that which is the best S4HANA Institute in Hyderabad and all that questions. I would say first you understand what you are. S4HANA is just a tool. I mean, you need not to bother about. What you have to reflect as human, as your personality is the most important thing that we all need to understand.
So can I get one or two of you to share something you wrote in your yesterday's reflection? किसी ने लिखा है तो yes, और किसी ने बस पिक्चर देखी और खत्म. मैंने कल बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जो वर्कबुक हमने आपके साथ शेयर किया है, आप वो वर्कबुक में अपने हाथ से पेन से लिखें अपने रिफ्लेक्शंस को. कितने लोगों ने लिखा है? यस बताइए जल्दी से. या आई मीन आई जस्ट वांट टू नो, आई एम वेरी क्यूरियस. ऐसा ना हो कि हमने कल एक सेशन किया, we did something much more with an effort. Not sure how many of you actually put an effort on that. Did you had a time? Just want to take a quick understanding. Right? Welcome back. Share that you did honestly your reflection in that workbook. If you had that workbook, say yes. Anybody? No. I guess Tisha Sejwal is raising her hand. Tisha and Nilesh, can you put your answers in the Q&A chat? Allow them. Let them speak. Let's have. Yeah. So let's move, right? I think किसी ने भी बहुत कम लोगों ने लिखा. Vishal Sharma is saying, I wrote something as key points for my reference. I love it, Vishal. एक लिखना बहुत अच्छा हैबिट होता है. आप प्लीज, मैं वापस वर्कबुक का क्यूआर कोड दिखा रहा हूँ. प्लीज इस वर्कबुक को प्रिंट करिएगा. व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज प्रिंट दिस वर्कबुक. Right? Go back. Let's go to slide number 1. Let me have an answer. How many of you are able to download this workbook? Right? Nilesh, I understand you are attending first time. Just download this workbook. We'll make session 1 available for you again. And you can look at session 2 today. What I would request is first download the workbook. Right? This workbook is a PDF from QR code which is appearing on the screen. You can download, and many of you who have this, please answer it as yes or no. Right? You have this workbook, say yes. In case you are downloading, do that. I just want to have that understanding how many of you actually have this. Right? Nilesh said, okay sir, thank you. Please kindly do that. Please download workbook. Right? I want to proceed quickly. So yes, Priya, thank you. I want to have more answers. Please keep saying yes, yes, yes in case you have downloaded. If you have not done that yesterday, please do that. Right? This workbook is something not just to read on your phone or laptop or any digital device. I would request all of you to print this. एक वो अपने Blinkit में आप भेज के इस वर्कबुक को प्रिंट कर लेना. And let me have much more value what you will be able to gain out of it. I can promise you one thing. Yesterday I told you 9 years, 5 years, 7 years, 10 years, you want to see yourself making good money in the context of India, maybe say 60 lakhs. We spoke about that story and we'll keep on deliberating on that in detail, right? Let's move to slide 2 again. I hope QR code is there. A lot of you would have understood. You can download that book. In case you need any help, go to the WhatsApp group or maybe email ID. We will share that. You can come back to us, or on the LinkedIn also, you can do that personal DMs, right? That's how we will chat with each other. I'm more on LinkedIn, guys. I'm not an Instagram fan or big fan, except watching as what I want to see. So let's go to slide, move on, right? Next slide, please. So welcome back again. Now, see, first and most important thing, right? You can see a kind of a pyramid structure in front of you, right? A question for most of the people, which you naturally, or I don't know, most of you, even I did not thought about it like that, right? Career selection has to come first. I just shared that Vaibhav Suryavanshi story. I know MS Dhoni personally, as I've been following for last 15, 20 years. I've seen so many successes in the professional career also. I'll show you some live LinkedIn use cases. We'll share some LinkedIn profiles and the videos also as a reference for all of you. You can understand those much better. And let's imagine a story, right? First, what you have to understand as personality, who you are. What are your interests? In that workbook, you have to write yourself. मेरा इंटरेस्ट क्या है? Professionally, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ? Right? Immature cricket and professional cricket are two different things. Right?
हम समझेंगे अभी बहुत इलेबरेट करके विल डू दैट डिस्कशंस. आई होप मोस्ट ऑफ यू आर कंफर्टेबल विथ माय इंग्लिश. If anybody is not very comfortable in between the lines, I am going with English, but with the audience mostly I'm trying to use English as a mix, right? तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि आपके पास पहले इंटरेस्ट होना चाहिए. जब आपका इंटरेस्ट होगा तभी तो आप उसको कैपेबिलिटी बनाओगे, राइट? इंटरेस्ट ही नहीं होता तो जबरदस्ती कैपेबिलिटी बनाने से कोई स्किल नहीं बनता, राइट? हम समझेंगे ये इंटरेस्ट क्या चीज है, आपकी पर्सनालिटी क्या चीज है. आज हम प्रोफेशनली इसको बहुत अच्छे से इलेबरेट करके अपने अपने प्रोफाइल्स के साथ कोशिश करेंगे. और मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा. एक हमारे कॉलीग हैं, शी इज अ डायनेमिक, I'll say more like a AI analytics expert today. She knows any business problems to solve. And you all will be surprised. तो जब आपके पास YouTube वीडियो आएगा आप उसको बहुत केयरफुली सुनिएगा. वो 3 साल पहले ग्राफिक डिजाइनर थी, फिर उनका इंग्लिश और टीचिंग में बहुत सारा इंटरेस्ट था, वो एक टीचर बन गई. लेकिन उनको शायद लगा कि अब मेरा लर्निंग कर्व रुक रहा है, और उसके बाद शी अडॉप्टेड अ करियर एज एनालिटिक्स, as coding skills, as to understand business problems she can solve. And in very short span, I think about 17, 18 months hardly, where she started all over again. She is now doing fabulous job. And I'll say one of the most responsible and accountable consultant I am proud to have in my team. I have some consultants who are now 10 years, who are making more than 60 lakh rupees, as how they have reached those journeys as differently from those who are still stuck somewhere in 24, 30 lakh rupees as their career. We'll talk about those real stories, and let's understand 3 students doing same degree, BCom, honors, same college. One became an HR business partner as by virtue of some interest and reflection of the career personality. One became a finance consultant. Also, one became a sales manager, say in a company like Unilever, Nestle, whatever you want to think. And I'll show you these 3 different personalities live on LinkedIn also. These are not to be recorded. I'll just show for the reference, and maybe we can chat more. So see, one degree, but it is a possibility today. There can be 3 different careers, as the degree does not decide what you have to do as next, as what you want to realize in your life, isn't it? Right? Let's understand this more. Right? Let's go to next slide. And as I go further, please understand that we have to have all these understandings in our life absolute with clarity. Right? Whatever I'm trying to share with all of you, these are something real stories. I am sharing my own journey as being science electronics graduate, as how I'm an entrepreneur today. So I'm an entrepreneur. I am not so much formally trained and educated as on business, but with my interest and experience as what I have picked up over the year. Nobody is born entrepreneur, by the way. As an interest only you become an entrepreneur, and then you start pursuing it as your career, right? Before we go further, let me tell all of you about my journey, that I'm an entrepreneur today, and I had dreamed about to be an entrepreneur as good as I think 94, 96. I tried so many things. I'll share as a story if we get chance to meet 101. वो एंटरप्रेन्योर वाला जो मेरे अंदर एक भूत था ना, वो बस गया, राइट? और आई मीन वो उसको मैं आई लिव्ड डे इन डे आउट. आई डिड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. और मैं आपको एक और अपने दोस्त की कहानी भी दिखाऊंगा. बहुत सीरियसली उसने अपना करियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया, मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे. आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ एमडी है. शायद उनको 2006-7-8 में रियलाइज हुआ कि मेरे को तो एमडी बनना है एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में, राइट? मैं उनकी कहानी आपको रियलिटी में दिखाऊंगा. आई मीन दीज आर नॉट एनी फेक स्टोरीज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? So please understand first, when you keep learning, you keep growing, you adapt, you stay relevant. Let's understand what are the skills that matters. What are these skills that travels with you across many roles? ऐसा कोई टेक्नोलॉजी एक सिंगल रोल नहीं है जो आपको अपने साथ
माने आप उसको तो दोबारा 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 सीख सकते हो, लेकिन आपके करियर के जो पर्सनालिटी एंड रिफ्लेक्शंस हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड थॉरली, राइट? सो लेट्स मूव क्विकली, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन ग्रो कंसिस्टेंटली, दैट क्रिएट्स इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सूर्यवंशी, आपने देखा होगा, वो छोटा सा बच्चा 5-6 साल से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और 15 साल की एज में सेंचुरीज बना रहा है, करोड़ों रुपए के उसके एंडोर्समेंट हैं। ही इज पैशनेट अबाउट दैट क्रिकेट थिंग, वेरी वेल, रियल टाइम एग्जाम्पल। जो उसको इंटरेस्ट था, जो उसकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हुआ, आज वो अच्छे से कर रहा है, राइट? सो एवरी करियर रियल डिसीजन इज एक्चुअली बैलेंसिंग दी 5 things at once, not one or single thing. Let's go to next slide. So 5 factors, right? We will understand as differently depending upon the industry, right? So let's see that. Let's go to next slide. So first is, you all need to have that adaptability. You should have transferable skills. You should be open to learning. You should focus on continuous growth, right? पहले अगर आप लर्न नहीं करोगे, वो क्रिकेट का स्टोरी यहाँ पे फिट करके देखो, या किसी बड़े कंपनी के कोई भी आइकन जिसको आप मानते हो, फुटबॉल मैचेस के कैरेक्टर देखोगे, उनका इंटरेस्ट था, ऐसे कोई वो सीधे फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, दे वुड हैव अंडरस्टूड इन द अर्ली एज कि उनका जो स्किल है एज अ स्पोर्ट्स, या उनका कोई बिजनेस का स्किल है, रितेश अग्रवाल हु इज ओनर टुडे, उसका इंटरेस्ट पैशन होगा ना एंटरप्रेन्योर बनना, तभी तो आज वो ओईओ जैसे बड़े कंपनी का, बिलियनर कंपनी का ओनर है। Rahul Bhatia, what we know as a founder of Indigo Airlines, has deep interest in travel industry always. बहुत कम लोगों को पता है, उनका छोटा सा ट्रैवल एजेंसी था कोनॉट प्लेस में, और आज वो इतनी बड़ी एयरलाइंस के ओनर हैं, ठीक है? आई मीन आप कहीं भी देखेंगे, पहला इंटरेस्ट पर्सनालिटी का, उसके बाद लर्निंग, फिर उसके बाद एडेप्टेबिलिटी, स्टे रेलिवेंट, स्किल्स को हम कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ, रेलिवेंट स्किल्स ट्रांसफरेबल होने चाहिए, और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ लाइफ में मिलेगी। दैट इज व्हाट करियर इज ऑल अबाउट, राइट? अन्य कोई जॉब, एसएपी कोर्स आराम से डिस्कस करेंगे, मैं आपको एसएपी भी सिखाऊंगा, फॉर श्योर आई विल गिव यू दैट इनसाइट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद इन एसएपी एज अ टूल व्हाट कैन मेक मी सक्सेसफुल। बहुत सारे बच्चे एसएपी सीखने के लिए आते हैं, उनको पता ही नहीं होता, पैसे खर्च करते जा रहे हैं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, राइट? So these are 4 characters what we just spoke about, and let's go to next slide. So first interest, second capabilities, एक और चीज हमको अलाइन करनी होती है समय के साथ, जिसको हम बोलते हैं आज इंडस्ट्री में डिमांड क्या है, दुनिया कैसे चल रही है, हम उसको समझेंगे, राइट? और मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स हम लिख के समझेंगे एआई में। अगर कंटेक्स्ट सेटिंग ठीक हुई तो आपका मार्केट डिमांड के साथ अगर आप अलाइनमेंट करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, वेयर यू वांट टू वर्क, आप वहां पहुंच जाएंगे 100%। और आपकी ग्रोथ, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, सुनिश्चित है, 210% आप ग्रो करते जाएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली फॉर श्योर। तो देखते हैं ये 5 फैक्टर, एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव जो हमने कल डिस्कस किया था, एक रिटेल कंज्यूमर इंडस्ट्री डिस्कस किया था, एक मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था, ह्यूमन रिसोर्स समझा था, टेक्नोलॉजी समझा था, एक हॉस्पिटल का डिस्कशन किया था कल हमने एज एन इंडस्ट्री, या हेल्थ केयर की बात करते हैं, राइट? एंड देन देयर इज अ कंसल्टिंग करियर ऑल्सो, व्हाट वी नो। बहुत सारे लोगों को इस ग्रुप में ऐसा लगता है कि हमें एसएपी कंसल्टेंट बनना है। मैं उसके आपको बहुत सारे पर्सनालिटी के आपके रिफ्लेक्शन समझाऊंगा। हर एक कोई एसएपी कंसल्टेंट बने ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप बगैर एसएपी कंसल्टेंट बने भी आज इंडिया जैसे कंट्री में इजीली 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जो पैसा इमेजिन करना चाहें, आराम से अपने करियर में कमा सकते हैं। मैं अपने टीम को 1 मिनट के लिए रोकूंगा और बोलूंगा एक बार लिंक्डइन शेयर करें, और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी दिखाता हूँ, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, मार्केट डिमांड का एक्चुअल एग्जाम्पल। और ये कोई एसएपी कंसल्टेंट का स्टोरी नहीं है। आई मीन दिस गाय इज माय कॉलीग इन क्लास 12, one of the most notorious students I knew. Can we go to browser? Can we open LinkedIn? Mridul, just stop the presentation here. With deep
gratitude for this person as my one of the closest friend. I am sharing one example live with all of you. Please just name, remember his name, search for him. उसका बैकग्राउंड जो आपको लिंक्डइन पिक्चर में दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी समझाता हूँ इंटरेस्ट से, और समझिएगा. मैं ये 5 फैक्टर्स का जो स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ दैट इज रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ यू. लेट मी शो यू दैट एग्जाम्पल. राइट, आई विल शो यू ब्राउजर. Yeah, and on that, Mridul, I'll request you to open the, or let me do that sharing. I mean, I'll do myself, right? Because he's my friend, I can do that much more easily, right? Mridul, allow me to share my screen. Let me share that. Okay. Now, I hope everyone can see my screen today, right? You all can see बहुत सारे यहाँ पे कुछ कुछ खुला है, और मैं आपको एक पर्सनालिटी दिखाता हूँ ये एग्जाम्पल के लिए. मैं बहुत सारे लोगों को इनका एग्जाम्पल देता हूँ, थैंक यू ग्रैटिट्यूड भी बोलता हूँ इनको, और मैं दिखाता हूँ इन्होंने अपने इंटरेस्ट से जब काम करना शुरू किया तो आज ये क्या बन गए. राइट, I hope all of you can see. This guy is Vikas Chadda, what I am trying to share. One of my closest, nearest, dearest friend. With all his permission, I am just trying to share what he is. A lot of you can see him as his MD, right? एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन की इंडिया में कंपनी है जिसमें ये आज बहुत सीनियर पोजीशन पे है. अगर आप सोचना चाहें, ये बड़े ऑर्डिनरी इन्वायरमेंट से हम दोनों ने सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करी है. मैं इनको जर्नी समझाना चाहता हूँ आप लोगों को. ये देखिए यहाँ पे दिखा है आपको टीवीएस, एक दुबई में बहुत बड़ी रिटेल की कंपनी है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बिकता है, जिसको जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, जो कुछ कुछ विजय सेल्स जैसी है इंडिया में. एंड देन वी कैन सी ही वाज वर्किंग इन हनीवेल. आप यहाँ पे इसके पहले देखिए मैकेंजी में भी आए, पर इसके पहले ये एक कंपनी थी शार्प, वहां पे नौकरी करते थे. शार्प कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इनको कैंपस प्लेसमेंट का समझिए वहां पे जॉब मिला था. यहाँ पे देखिए 1993 में इन्होंने एक टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की कंपनी थी जो एल&टी ग्रुप में आती है, वहां पे ग्रेजुएट इंजीनियर के तरह सेल्स में पोजीशन ज्वाइन करी, जहां पे ये फोटोकॉपियर्स अपने रीजन में कुछ सेल करते थे. और एक फोटोकॉपियर बेचते बेचते अगर कोई यहाँ पे देखेगा 2000 करोड़ का बिजनेस संभाल रहे थे, 3000 एम्प्लॉइज का बिजनेस संभाल रहे थे 2014 में. राइट, और व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन. एक आदमी यहां तक देखिए नेशनल सेल्स मैनेजर था, 40-50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ का कोई बिजनेस संभालते थे शायद, और आज मैंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें तो अब वे बहुत बड़ी कंपनी है, टीवीएस सप्लाई चेन. राइट, आई थिंक लॉट ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर. बहुत बड़ी कंपनी है, और इस कंपनी में विकास आज मैनेजिंग डायरेक्टर है. एज एन एग्जांपल, अब मैं इनकी जर्नी समझाता हूं आप लोगों को, आपको समझ में आना चाहिए. ये मेरे साथ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, हम दोनों एक स्कूल में पास आउट हुए. ये 99% आए थे इनके 12th में, मैथ्स में 100/100. बड़े नोटोरियस टाइप थे. ऐसा नहीं है कि ये आज जैसे दिख रहे हैं, उस समय भी बड़े माने सब कुछ करते थे इनकी लाइफ में. एवरीथिंग वाज सो गुड, सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम. राइट, ही वाज आर्डेड क्रिकेट प्लेयर, ऑलराउंडर, खूब मजाक करते थे. अगर मैं ऑनेस्टली आप लोग को बताऊं, हमारे क्लास में कम से कम 9-10 बच्चों को सिगरेट पीना इन्होंने सिखाया था. और फिर भी इनके 12th स्टैंडर्ड में उस समय में 1989 में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता 99% आए थे. पर एक अपने घर में प्रेशर था और ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेना पड़ा, क्योंकि उस समय 2 ही करियर सबसे बड़े थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ. तो भाई के 99% आए, कोई चॉइस नहीं थी, और ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पहुंच गए. जब ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पहुंच गए, 93 में पास आउट हुए, तो इनको कैंपस प्लेसमेंट में एल&टी में जॉब भी मिल गया. आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ माय हिंदी. से यस if you are. If you have any problems, I'll do more of English and English. Are you comfortable with my Hindi? Fine. So अब आप देखें यहां से जब इनका इंटरेस्ट था, आज ये इनको 2006-2007 में पता लगा
कि मैं पीपल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सब काम में बहुत अच्छा हूँ और मैं बेटर है ये सेल्स का जॉब ना करूँ। सेल्स तो मेरे करियर का एक छोटा सा प्रोफाइल है, क्यों ना मैं अब एमबीए करूँ। तो इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और एक फुल टाइम 15 मंथ्स का एमबीए ज्वाइन किया और जो इनका इंटरेस्ट था उसके ऊपर काम करते रहे एज अ पर्सनालिटी, राइट? I'll stop sharing. I'm not supposed to share too much about him. But what I can tell all of you is you can see how successful he is in his career, right? I hope you understood. सबसे पहले वापस प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। हम आज जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं बताइएगा, हमारे को समझ में आना चाहिए। सच अ फैंटास्टिक गाय। उसको 2006-7 1993 1993 में हम पास आउट हुए थे। उसके बाद 14 साल के बाद पता लगा कि मैं बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, मैं बहुत अच्छा लीडर हूं। और उसने अपना करियर चेंज किया वापस और फिर एमबीए किया। रीस्टार्ट करने में कोई खराबी नहीं है, राइट? विल अंडरस्टैंड दैट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट आई नो मोस्ट, I'll share that experiences. Let's go to next slide quickly. Let's understand many perspectives. Okay. So what is most important is understanding yourself. Take a break. अभी थोड़ा सा डिस्कवरी जर्नी पे जाते हैं। जस्ट थिंक ओवर करिएगा कि आप कौन है, राइट? आप अपनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सोचिए एक मिनट, आप आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, व्हाट यू आर। 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं, जस्ट सोचिए आप व्हाट यू आर, राइट? जस्ट थिंक ओवर आप क्या हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। 1 मिनट के लिए हम सोच रहे हैं बस, राइट? सोचते रहिए, देखते हैं कुछ आया दिमाग में, लिखिए अपने पेपर से, देखते हैं समझते हैं आगे और अपनी लर्निंग को फाइन ट्यून करेंगे, राइट? सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, समथिंग इंपॉर्टेंट is understanding yourself is the most important critical thing as what you are good at, right? आगे चलते नेक्स्ट स्लाइड में एक बार समझते हैं नेक्स्ट as what and how relevant it is. Let's go to next slide quickly. Let's go to right. So you can do your self assessment, right? You have to answer honestly. एक QR कोड भी है यहाँ पे, आप खुद भी इसको स्कैन करके मेरे लिए हेल्प कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप अपने आंसर लाइक योर पेरेंट्स मत करिएगा, आंसर लाइक योर फ्रेंड्स मत करिएगा, कोई लिंक्डइन चैट जीपीटी में कॉपी मत करिए। अपना आप सोचिए जरा, आप क्या पीपल मैनेजमेंट में अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने का सोच सकते हैं, आप में क्या कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट? हम इसका एक सेल्फ असेसमेंट आपको जस्ट सेइंग दैट, क्विकली डू दैट, स्कैन करिए, यहाँ पे आंसर करिए, देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं, राइट? जस्ट डू दैट क्विकली. So let's understand, right? While we are here, one thing, self-assessment is the most important thing that will do a lot. Maybe recording 2-3 दिन लग सकते हैं, बड़ा केयरफुली समझिए, फोटोग्राफ खींच लीजिए, अंडरस्टैंड करिए अपने आप को. That is what I want, right? Okay, let's go to next slide and let's understand what I want to convey all of you, so that you have lots of clarity in understanding this, right? पर्सनालिटी जो होती है ना ह्यूमन की, कुछ लोगों को बोलने में बहुत अच्छे हैं। मेरे पास जैसे गॉड गिफ्टेड है, मेरे फादर ने मेरे को 9th-10th स्टैंडर्ड में डिबेट कंपटीशन सिखाए थे। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा ब्रांड का लोगो बना सकते हैं, या आपके डिजिटल मार्केटिंग के थॉट प्रोसेस बहुत स्मार्ट हैं। कुछ लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होगा, फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं। एआई की भी बात करेंगे हम आगे, एक एग्जाम्पल से भी दिखाएंगे। और वर्क स्टाइल्स क्या होते हैं आपके, हो सकता है आप एक फेट या एक कोई इवेंट करने में बहुत अच्छे हैं, आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज द इंटरेस्ट एज वर्क स्टाइल्स, राइट? As professionally, if we want to understand what our personality and work styles, we have to be very careful in understanding what we are. और मैं आपको धीरे 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 समझाऊंगा वो सारे टूल्स तक कैसे पहुंचते हैं, आप वो टूल्स को राइटली कैसे अडेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। अगर कोई सोचता है कि मैं एसएपी कंसल्टेंट बन जाऊं, तो उसको क्या तैयारी करनी है अपने बारे में और कैसे वो बहुत अच्छा एसएपी कंसल्टेंट लाइफ में बनेगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके,
दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। मेरे पास हजारों बच्चे आते हैं, वो सीधे बोलते हैं एसएपी एसडी करा दो, उसका मतलब ही नहीं पता होता। कोई बोलता है एमएमपी को करा दो, कोई बोलता है मेरे को बीए रख लो, कोई बोलता है टेस्टिंग करनी है। वी से यार रुक जाओ भाई प्लीज। आफ्टर डूइंग 6 months 8 months दे आर स्टिल वेरी मच कंफ्यूज। बहुत सारा टाइम पैसा खर्च करते हैं, बिकम सो रिडिकुलस फॉर अस टू सी दैट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग first understand what personality you are. I hope now you can answer, right? Maybe you are creative, you love listening, you are good at communication, you are good at execution, you know how to solve maths problems, puzzles, you are good at numbers. Please see, these are some career options which are written below. अगर किसी को पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, स्कूल में बच्चे मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है उसको वो बहुत अच्छा काम कर रहा है ऑलरेडी टीचिंग जॉब में, तो उसको पॉसिबली ह्यूमन रिसोर्स साइड, लर्निंग मैनेजमेंट साइड, या मे बी सेल्स, दीज आर सम करियर ऑप्शंस। और फिर हम समझेंगे टूल्स एंड एआई, हाउ दैट इज गोइंग टू हेल्प। कोई बच्चा बहुत अच्छा हैंड ड्राइंग्स में है, उसको समझ में आना चाहिए, वो बहुत अच्छा ब्रांड मैनेजर बन सकता है, इतने सुंदर सुंदर ऐड बना सकता है। क्रिएटिव माइंड हैज टू गो इन दैट डायरेक्शन। और कोई बच्चा कंटेंट लिख सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। व्हाई टू वेस्ट, एसएपी इज द ओनली करियर। एसएपी भी करियर है, मैंने बहुत सारी जगह एसएपी ऑप्शंस लिखे हुए हैं, पर हम समझेंगे एसएपी एज अ टूल या कोई और इस तरह के टूल, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प, राइट? दिस इज पर्सनैलिटी वर्क स्टाइल्स, व्हाट यू शुड नो। As you have to write one of it, maybe two of it, just think over it. Then we will talk more about those tools, right? Is that clear to all of you? Let's go next. Let's try much more deeper thing next. So, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? I mean, are you able to get out? तो आप एक और अपने लिए काम करेंगे, right? I hope a lot of you are enjoying it. But ये भाई जो भी मैं एफर्ट आपके साथ लगा रहा हूँ, प्लीज आप समझिएगा। अब आपने अपनी पर्सनालिटी देख ली, राइट? अब वो आदमी एक रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है, राइट? उसके पास आज बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, और आज के डेट में उसको एक अपॉर्चुनिटी है एआई की, टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, राइट? और कुछ कुछ नए नए आइडियाज बबल कर रहे हैं। तो आप एक किसी को पूछ के देखिएगा कि व्हाट एम आई नोन फॉर। आज जो हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, आपको लोग क्यों पहचानते हैं? थोड़ा प्रोफेशनली अलाइन करके देखिएगा, एज विथ योर सेल्फ, डू अ स्वॉट एनालिसिस एंड ब्लाइंड स्पॉट ऑल्सो। अंडरस्टैंड कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करेगी, तो आपको इस 4-5 चीजों के ऊपर 110% एनालाइज करेगी। वो आपके कोडिंग स्किल्स या ऐसे पीएचडी स्किल्स को नहीं देखेगी। I am 200% sure as that what you need to understand। या सेल्स फोर्स आता है, आपको इसके ऊपर कतई नहीं देखेगी आजकल। That's how time has changed। Okay, let's move। अब हम जो बात करने वाले हैं, आई होप थोड़ा सा और डीप डाइव करना है हमें, और हमने करियर स्टोरी भी देखी विकास की। डिसीजन मॉडल्स हमारे थोड़े से अलाइन होने चाहिए। रियल करियर जो हमारा लाइफ में है, वो 5 चीजों के ऊपर टिका हुआ है, नॉट वन। इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, लर्निंग स्किल्स, डिमांड, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? वर्कबुक इसीलिए बोला डाउनलोड करिएगा, 2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, राइट? So now, after doing your self-assessment, personality work styles, what we have understood, there are different options that we have just discovered. हमने SWOT blind spot discuss किया। Actually, someone at home, what do you think I should be known for? मेरे को मत पूछेगा, मैं भी आपको ट्रिक सिखाऊंगा। आप ये 2 आंसर अपने आप से पूछेगा, अपने वर्कबुक में लिखेगा कि मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, मेरा स्ट्रेंथ एरिया क्या है, what do you think you are known for, right? ये सवाल पूछेगा तो आपको पता लगेगा। अब देखिए, एक जापानीज टर्म होता है इकिगाई, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इकिगाई? कितने लोगों ने इकिगाई सुना है? इकिगाई सुना है कभी अपने लाइफ में? इकिगाई, somebody saying yes, okay। so इकिगाई का ना बहुत सिंपल आपको प्रिंसिपल होता है। जापानीज जो लोग होते हैं वो इकिगाई में ट्रेनिंग करते हैं बहुत सारे पैसे खर्च करके, राइट?
तो अब नीचे देखें हमने रिफ्लेक्शंस लिखे हैं, क्लैरिटी दी है, व्हाट डू आई एंजॉय, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, राइट, व्हाट विल ऑर्गेनाइजेशन पे यू फॉर। फिर वही वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, 10 years from now, 9 years, 7 years from now, I want to see comfortably I'm making 60-80 lakh rupees salary. These are something that we always want to know or want to think about it, right? और एचआर में पीपल टैलेंट मैनेजमेंट, इसकी भी हमारे पास कुछ लाइव केस स्टडीज हैं। वो बच्चों ने एमबीए किया, फिर अपने आप को करियर इंटरेस्ट के साथ अलाइन किया, एसएपी का एक सक्सेस फैक्टर टूल सीखा, लेकिन आज वो एसएपी से ज्यादा पीपल मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, ऑर्ग स्ट्रक्चर जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं, उसके डिजाइन में एक्सपर्ट है एज अ कंसल्टेंट। तो हमें यहाँ पे HR, technology, finance, retail, FMCG, these are some areas what we know very well. और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, कोडर भी हैं, तो आपको इन एरियाज में ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हो सकता है कुछ और इंडस्ट्रीज हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वहां पे भी बहुत बड़े बड़े करियर हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज दी ओनली करियर। These are some what we are showing examples by domain. Let's do next. Discover yourself. We have understood Ikigai also, right? Let's keep discussing. So we all have 4 overlaps. It is not guaranteed that we are strong at one, right? The centerpiece is these 4 questions that I wanted all of you to understand thoroughly. And Ikigai shows you different domains. HR perspective, we have shown you the questions that we have understood, right? So we again talk about this career anchors, and we have to keep understanding about it as the roles that we can start with, and gradually we can reach in 5 years, 10 years. career planning तो वही होती है दोस्त, पहले वो एक छोटे से स्टेट लेवल के जूनियर स्टेट में बैट्समैन बने, उसके बाद धीरे 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 वो आईपीएल और आज नेशनल टीम का पार्ट है, राइट? These are something what we all need to understand, right? This is what I want all of you to follow through. Let me show you what this looks across different domains. And HR is people, talent, technology is innovation, automation, finance is analysis. In retail, we have customer operations, leadership. In FMCG, we have brand execution growth, right? These are 4 questions, completely different, depending upon the human as the problems he can solve. One more thing as a lens, what we all should understand, what matters most to you right now at this stage. Leadership, learning, security, what is important? Freedom, purpose. Let's go to next slide, right? Let's understand it thoroughly. क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो जवाब दीजिए, राइट? अपने आप को, मेरे को कुछ नहीं देना है। अभी वो वर्कबुक बोला था मैंने कि आपको वर्कबुक इज इंपॉर्टेंट। सो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डू यू नो दैट, राइट? आपको जानना बहुत जरूरी है भाई। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी ऑल शुड अंडरस्टैंड, ओके? लीडरशिप अच्छी है, लर्निंग अच्छी है, ये सारे हम चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेट्स गो नेक्स्ट। कोई राइट आंसर जरूरी नहीं है एक बार में मिल जाए, इतना आसान नहीं होता दोस्त, राइट? अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने आज स्टोरी पढ़ी थी एक रियल, आई मीन दिस इज नॉट स्टोरी, एक्चुअली न्यूज। तो एक साहब थे, वो बिजनेस कर रहे हैं, आज के ये इकोनॉमिक टाइम्स, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर, बुक्स, आई मीन आई फील दीज आर माय रिफ्लेक्शंस what I get to see in these newspapers, magazines, books. I'm ardent lover. Reading is something what I want to. आज मैंने सुबह एक पढ़ा कि एक आदमी अपना बिजनेस 2-3 बार फेल कर लिया और वो बार बार 20-25-50 लाख रुपए खराब कर देता था। उन साहब ने प्रॉम्प्ट्स जो बोलते हैं ना, वो प्रॉम्प्ट्स के जरिए कुछ अपने प्रोडक्ट आइडियाज को रिसर्च किया और देखे प्रॉम्प्ट से उसको क्या रिजल्ट मिला। एक बार उसने एक क्वेश्चन किया, इज एनीवन एक्चुअली सर्चिंग फॉर दिस, उसका जो आइडिया था, तो वो देखना चाहते थे कि क्या लोग इस तरह की प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट? उन्होंने ऐसा कुछ समझने की कोशिश करी, तो उनको कुछ प्रॉम्प्ट ने जवाब दिया होगा। फिर उसके बाद हु ऑलरेडी इज इन द एयर पूछा, पूछते रहे,
और बहुत सारे सवाल जवाब चलते रहे होंगे। अल्टीमेटली क्या था कि उनको समझ में आया कि जो प्रोडक्ट का प्रॉम्प्ट वो वहां पे दे रहे थे उसके बारे में जब उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी या क्लॉड या जेमिनाई को फीड करी, देन ही गॉट समथिंग अबाउट हिम एज टू अंडरस्टैंड कि उनका बिजनेस आइडिया ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स उसके ऊपर ऑलरेडी पैसा लगा रहे हैं, एक्सेलरेटर्स एंड कम्युनिटी में ये सारी चीजें डिस्कशन हो रही हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगा चुके हैं। तो AI can't search LinkedIn, but it can start a point what towards people who can help, right? तो एक एक यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट्स मैंने आपके लिए सबके लिए यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। आप अगर चैट जीपीटी को सीधे पूछोगे सजेस्ट अ करियर, या आप किसी भी AI इंजन को पूछोगे कि मेरे लिए करियर बताओ, यू विल नॉट गेट आंसर। If you'll say I am good at this, right, and I am good at communicating with people, फिर उसके बाद हम कुछ पूछेंगे तो आपको AI से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हम बोलते हैं 20% कंटेक्स्ट सेटिंग, फिर आपका 60% काम AI कर सकता है। आपको क्लियरली स्पेसिफिक थॉटफुल अपने बारे में एक काम करिएगा, आज आप चैट जीपीटी का हेल्प लीजिए। मैं रोज आपको एक AI ट्रिक सिखाऊंगा which will help you do transformation in your career. This is the thing what I want to share with all of you. AI का अच्छा यूज कर देना। कल भी हमने एक एग्जांपल दिया था, बी क्लियर, बी स्पेसिफिक, बी थॉटफुल, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट सेटिंग भी सीखना होता है। अगर आप पहले एक प्रोजेक्ट बनाना सीख जाएंगे क्लाउड में, या आपको चैट जीपीटी में पता है प्रोजेक्ट कैसे बनता है, जेमिनाई में आपको समझ में आएगा, तो आप अपने लिए बनाइए करियर, और जो भी आपका नाम है, नदीम, करियर, नेहा, उसके अंदर जाइए, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके अपने बारे में डालिए पहले खूब सारी इंफॉर्मेशन। आप क्या थे, आप क्या सोचते हो, आपके क्या रिफ्लेक्शंस हैं, आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद देन यू कैन आस्क दैट इंजन एज, बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि एसएपी एसडीएमएम ये कोई करियर होता है, आपको जवाब देना है आई लव सप्लाई चेन, आई वांट टू अंडरस्टैंड how the entire supply chain works efficiently. I want to make my career in that. Something like that you have to think and write, right? What you like, what problem you want to solve, how you reflect yourself as an individual. आपको जो मैंने 4-5 चीजें डब बताई, वो आप जरा AI को फीड करके अपने बारे में पूछिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। आई एम डैम श्योर। कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। तो आज पहले जब हमने समझा AI, राइट, AI आपको मैं गारंटी कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जो एसएपी सीखने की बात कर रहे हैं, अगर आपको छोटा सा ट्रिक पता लग जाए AI को यूज करने का, तो AI तो जस्ट इज अ सब्सक्रिप्शन ऑफ हार्डली मे बी 1200 रुपीज, 399 रुपीज और समथिंग लेस देन दैट, always is your companion, right? If you know how to use it, you can use it so well, you can understand the career that you are thinking, what you are good at. Then you can ask demand, competition. You can do all these questions. You can have a brutal review also with the help of AI. And why should you actually be talking about it? Ask AI to map the ecosystem of people who can help. Mentors भी बता देगा आपको कि मैं कहाँ पे जाऊं, YouTube में क्या देखूं, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद आप अपने लिए बहुत सुंदर प्लानिंग कर सकते हो। इफ यू आर डूइंग सब जॉब, मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले एक जॉब एक्सपीरियंस एज व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू वांट टू डू एट, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ काम करेंगे और साथ में पढ़ते रहेंगे, लर्निंग चलती रहेगी, वो भी एक ऑप्शन होता है। दैट इज व्हाट ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस परमिंदर सिंह एज स्टोरी, रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज स्टोरी है ये, राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो बिजनेस का आइडिया भी उन्होंने वहां पे जाके पूछा। ये परमिंदर जी की आज इकोनॉमिक टाइम्स में स्टोरी छपी हुई थी, और हमने क्ले बॉक्स AI नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल भी समझाए। इसकी आप जब प्रेजेंटेशन आए तो उसको रिसर्च करिएगा। असली आइडिया है कि आप अपने बारे में समझें, और AI सारे काम झटपट कर सकता है, ये बात हमने करी थी, पर उसको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, बहुत सारा कंटेक्स्ट चाहिए होता है। डू दैट फर्स्ट, देन आस्क
an answer for, right? Let's go next. Let's understand. Let's go next. तो ये सामने अपना आप आते हैं हायरिंग पर्सपेक्टिव. लॉट ऑफ पीपल थिंक अगर मैं आज सेल्स फोर्स सीख लूं तो मेरे को जॉब मिल जाएगी, मैं एसएपी सीख लूं जॉब मिल जाएगी, मैं सैट सीख लूं जॉब मिल जाएगी. ऐसा नहीं है भाई. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. एज एन एचआर जॉब वी वांट टू सी हाउ यू आर एट एज अ पर्सनालिटी. एजुकेशन कितना अच्छा है आपका, टेक्नोलॉजी कितनी सीखी है आपने, वो भी एक स्किल है. टेक्नोलॉजी जरूर कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, but should be much relevant for you and what kind of problem solving skills you have. And maybe in any of these careers, right, all these tools can help you too much. अगर SAP आप अच्छे से जानते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन इतना अच्छे से आ जाएगा. आई एम डैम श्योर अगर आप एक इंटरव्यू में जाएंगे एज प्रोडक्शन इंजीनियर, rather than getting into a shop floor, you can become the production planner, right? If you know that rightly, if you are good at problem solving, right, then the tool makes a lot of sense for all of you. Do that business thinking. मेरे को तो business समझ में आता है. अगर आप business sales point of view से सब कुछ समझते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैं पूछता हूँ तुमने SAP सीख लिया और इंडस्ट्री का तुम्हें कुछ अता पता नहीं है, सेल्स क्या होता है, how that works. If you don't know anything to do understand how sales works, what is product, who is customer, what price, so many things you have to solve as a business thinking. अगर आपने वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो आप कंसल्टेंट बन ही नहीं सकते भाई. आपको कोई टूल के लिए नहीं हायर करेगा, दे विल हायर यू फॉर योर एबिलिटी टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स एज बिजनेस थिंकिंग. लेट्स गो टू नेक्स्ट. लेट्स अंडरस्टैंड, राइट? सो ट्राई एंड रेट योरसेल्फ, राइट? व्हाट आई एम गुड एट, बिजनेस, technology, people management, leadership, operation, analytics. ये बुक में भी आपके पास, आप जरा अपने सेल्फ स्कोर करके देखिए. आई मीन आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आज एक आप सोचिए, अगर आपको लीडरशिप स्किल है तो क्या आप कोई ऐसा प्रोग्राम जहां आपके फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जाना है और मसूरी जाएंगे, आपको ऑर्गेनाइज करने में मजा आता है क्या आपको? या आप कोई कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं क्या? आपके पास क्या बहुत इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज हैं क्या? मैं बहुत सारे जो दिवाली फेस्ट होते हैं वहां पे मैं स्टॉल्स लगाऊं, कुछ प्रोडक्ट बेचूं, पैसा कमाऊं, उसमें आप टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से QR कोड से इंटरलिंक कर सकते हैं क्या? क्या आपको पता है वो पीपल मैनेजमेंट कैसे रन करेगा आपका? और आपको क्या वो साइंस आती है? एक एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि मैंने बिजनेस किया, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, मेरे को अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हुआ, वो सेंस बड़ी स्ट्रांग है, मैं उसको पहले से सोच सकता हूँ. दीज आर समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू लीव विद दैट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थॉरोली अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट, राइट? देखते हैं आपका स्कोर क्या आता है, फिर डिसाइड करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड थॉरोली एज व्हाट यू आर. लेट्स गो टू नेक्स्ट. अच्छा, अब समझते हैं थोड़ा सा. Let's explore the career journey examples also. Career journey. हम तो यहाँ कोई समझने आए थे, पैशन, पर्पस एंड पॉसिबिलिटी के साथ अलाइनमेंट करना है. That is what we want to do. We are here for career exploration. कल हमने इंडस्ट्री समझा, आज अपने 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 आप को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर समझ रहे हैं हाउ वी कैन बिल्ड आवर करियर, व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट, व्हाट वी कैन लीड फॉर. एंड आपने वो 9 साल का ड्रीम नहीं छोड़ना है अपने दिमाग में, 5 साल का ड्रीम नहीं छोड़ना है, 3 साल का ड्रीम नहीं छोड़ना है. जैसे मर्जी आप सोचिए, दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट, राइट? पैशन, पर्पस एंड पॉसिबिलिटीज, दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस. एक पर्सनालिटी और बहुत सारी जर्नीज के ऑप्शन है, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. लेट्स गो नेक्स्ट. अच्छा, कितने लोग को एक कॉमिक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा है? से यस. आई जस्ट वांट टू गेट आंसर्स. देखें, सो तो नहीं गए आप लोग, राइट? जस्ट से यस, यू आर लाइकिंग दिस प्रेजेंटेशन स्टाइल. So a lot of you now are saying, ये विक्रम वही है क्या जिनको मैं जानता हूँ? Say yes. Lot of people I know, right? Thank you. So yes, you are liking it, right? Let's understand. तो बहुत सारे लोगों के कहने से कोई इंजीनियर नहीं बनना, आपको एनालिटिक्स का महंगा सा कोर्स नहीं करना. Don't go blind spot. Don't start investing money left and right. Okay, let's go next. Let's understand.
लेट्स हैव द एक्ट 4। तो ये जो एंटरप्राइज करियर है, क्यूरियोसिटी, एनालिटिकल स्किल, पेशेंस बहुत सारा चाहिए, राइट? इट डज नॉट बिकम so fast that you become the project manager or the solution architect or CIO as a thought process in day one। आपको तो पहले अपना डिग्री जो आप परस्यू कर रहे हैं उसके साथ लर्निंग एबिलिटी को ऑन करिए, कुछ बिजनेस प्रोसेस सीखिए, बिजनेस एनालिस्ट बनिए, एसएपी कंसल्टिंग में आइए और सीनियर कंसल्टेंट बनते जाइए। ये 9 साल का एक जर्नी है, ट्रस्ट मी। इफ यू फॉलो दिस एज अ पाथ, आई एम डैम श्योर इन 10 years यू कैन इवन बिकम अ प्रैक्टिस हेड और द ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। ये प्रैक्टिस हेड क्या होता है? पीडब्ल्यूसी में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लोग यूज करते हैं पार्टनर। एक जाके रोल सर्च करिएगा, पीडब्ल्यूसी मैनेजिंग पार्टनर, और उसका नीचे जाके लिंक्डइन में देखिएगा हाउ दे हैव प्रोग्रेस्ड इन देयर करियर, राइट? अगर आपको कंसल्टिंग अच्छा लगता है, ऐसे कुछ कुछ रोल्स करिए और लिंक्डइन में जाके सर्च करिए, एआई से पूछिए। you will get to know as how you have to go, and then you can ask a question, what is the path towards that? I'll also try and help you to do that. Understand the realities that when you travel across, you have the learning continuously in your life। क्या मैं कहीं भी जाके काम कर सकता हूँ? मेरा लर्निंग प्रोसेस कितना अच्छा है? एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको हाथ से अपने बारे में लिखना आता है और आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, तो आप अपने लाइफ में जो सक्सेस का एक ऑपरेशनल प्रिंसिपल है ना, यू विल हैव 100 times। पहले बोलते थे ना एग्जाम से पहले लिखो भाई, आपके एग्जाम्स में नंबर अच्छा आएंगे, आपको मेमोराइज अच्छा होगा। दिस इज द एग्जैक्ट फैक्ट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। कितने लोग मैंने देखे हैं लाइफ में एक्सेल नहीं कर पा रहे बिकॉज दे डोंट हैव राइटिंग स्किल, डॉक्यूमेंटेशन करना ही नहीं आता है, राइट? एनालाइज कहां से करेंगे जब हाथ से लिखा नहीं है? वो सब सोचते हैं चैट जीपीटी कर देगा उनके लिए। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको सही बताऊं तो एआई आज अगर मैं उसको राइट कंटेक्स्ट समझाऊं तो 50-80% कोडिंग से लेके एसएपी की कॉन्फ़िगरेशन भी कर देता है। दैट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ कंसल्टेंट what we are designing at level of business। Are we able to take our team together? Are we good at in quality? Can we do customer satisfaction? All these are evolving career as example one as enterprise consulting SAP। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि मैं SAP कंसल्टेंट बनना चाहता हूं, तो यहाँ पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है SAP का कॉन्फ़िगरेशन। उसके पहले नीचे वाला पार्ट देखो, 1 2 3। क्या आप उसमें टिक मार्क्स लगा सकते हो अपने लिए? क्या आपको ये सब पता है? अगर आपको प्रॉब्लम एनालाइज करना आता है, किसी भी इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो पीपल रिलेटेड हो, चाहे एनालिटिकल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग या जो भी हमने सप्लाई चेन के डिस्कशंस किए, आपके थॉट प्रोसेस में बिजनेस आता हो, तभी आप ये एसएपी कंसल्टिंग में आना होगा आपका। नहीं आइए, वरना देर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग एसएपी मॉड्यूल्स डायरेक्टली, क्योंकि वो तो एक टूल है जहां पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, राइट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव एन एम्फेसिस। तो एक एग्जांपल 1, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब एचआर वाले क्या करते हैं? एचआर में सबको पता है, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्टक हैं आज कि हम रिक्रूटर ही बन के रह गए, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द प्रिंसिपल, राइट? आई एम अ ग्रेजुएट, I did HR internship, I did understanding on talent acquisition। AI ने मुझे हेल्प किया होगा कि टैलेंट एक्विजिशन में कैसे मैं करूं। फिर मेरा थोड़ा रोल चेंज हुआ, मैंने बिजनेस पार्टनर कैसे बनना है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए, जब ज्यादा पैसा कमाना होता है ऑर्गेनाइजेशन को एक रिसोर्स से, तो उसकी एबिलिटीज के ऊपर बहुत सारा लर्निंग स्किल्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग, ताकि वो आदमी और अच्छा परफॉर्म करे और उसका ज्यादा पैसा मिले। तो ये एचआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सिर्फ यूडमी या कोर्सेरा या कोई क्लासेस ऑर्गेनाइज करना नहीं होता। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आदमी है, इसका ये रोल है, इसको हमें क्या लर्निंग करियर के ऑप्शंस देने हैं, और इसी में हेड एचआर तक पहुंच जाते हैं। देन समटाइम पीपल बिकम एट यंग एज CHROs also who have a great career। Sometime we can become a mix of both as what I have shown you other side and this side also। ऐसा कोई
थंब रूल नहीं है कि अगर आप पीपल मैनेजमेंट में अच्छे थे और आप जर्नलिस्ट थे तो क्या आप एचआर कंसल्टिंग में नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हो। आप दोनों चीज को एक साथ मिक्स कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव एन एम्फेसिस एज। लेट्स गो नेक्स्ट। एक और रोल दिखाता हूं मैं आपको। अगर आपको बिजनेस अच्छे से समझ में आता है और आपको वो प्रोडक्ट जैसा कुछ दिखता है, राइट, तो ये देखिए, ये करियर वर्क स्ट्रीम्स होती हैं। अगर आज मैं आपको एक और अपने कॉलीग हैं, मैं फिर से वापस आपको उनकी जर्नी दिखाऊंगा। मेरे से थोड़े सीनियर हैं और देखिए आज वो किस लेवल पे पहुंच गए। और कभी ग्रेजुएट ट्रेनी होते थे, विकास भी सेल्स में थे लेकिन उनको सेल्स अच्छी नहीं लगी। मैं अब सेल्स वाले आपको एक रोल से रूबरू कराता हूँ। सेल्स कोई खराब करियर नहीं है भाई, लेट्स अंडरस्टैंड इट थॉरोली, राइट। ऐसा नहीं है कि वो फील्ड जॉब ही है आपके लिए हमेशा। देर इज द साइंस, देर इज टूल, देर इज टेक्नोलॉजी, देर इज एआई, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, सीनियर, बहुत कुछ हैं। मैं 1 मिनट के लिए वापस अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं आपको इनको भी एज अ दिखाना चाहूंगा ऑप्शन, राइट। देखिए, सेल्स करियर खराब होता है या अच्छा होता है, देखते हैं, राइट। लेट्स सी दैट। फिर से मैं लिंक्डइन पे गया और मैं आपको उन लोगों की दिखा रहा हूं जर्नी जिन्होंने कॉन्स्टेंटली लर्निंग करी, अपने लाइफ को आगे बढ़ाया। और देखिएगा ये कौन है। और मेरे बहुत अजीज क्लाइंट भी हैं। और देखिए, आई मीन इफ यू हैव टू सी, ही इज अ सीईओ एट हल्दीराम, राइट। ही वाज बिफोर सीईओ इन डाबर इंटरनेशनल। और इनकी लाइफ प्रोग्रेशन देखिएगा, तभी समझिएगा, ठीक है। सेल्स सेल्स सेल्स, चीफ मार्केटिंग। और इनका करियर देखिए जरा एक बार। बहुत पुराना करियर नहीं है दोस्तों, राइट। ही इज अ आर्डेड लर्नर, कॉन्स्टेंटली इज लर्निंग। और कभी डाबर कंपनी में ये ब्रांड मैनेजर का काम करते थे। एंड स्किल्स ही इज गुड एट। उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए। ट्रस्ट मी, मेरे से ज्यादा अच्छा एआई इनको आता है, right? I feel so proud my relationship with him as human, such a fantastic personality, a salesperson। सारे टूल्स आते हैं, सब कुछ टिप्स पे है, एनालिटिकल स्किल इतने स्ट्रांग है, कस्टमर कौन है, डेटा क्या है, एवरीथिंग ही नोज, राइट। सो दैट्स हाउ द करियर इज। ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्स इज अ बैड करियर। समटाइम वी एक्चुअली डोंट नो हाउ इट कैन टेक टू प्रोग्रेशन, राइट। हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है, बस हम वो सारे टाइम सेल्स सेल्स सेल्स। सेल्स इज अ साइंस, राइट, दैट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स गो नेक्स्ट। मैंने 3 एग्जांपल्स दिखाए। अब डेटा एनालिटिक्स भी समझ लेते हैं। एक ग्रेजुएट है, उसको सिंपल एक्सेल से डेटा एक्सट्रैक्शन करना आता है और वो डेटा एनालिस्ट से आउटकम बता सकता है। एआई एनालिस्ट बन जाएगा उसके बाद। मैं आपको दिखा सकता हूँ आज वो एक्सेल में, अगर आप प्लॉट में बहुत सारे डेटा को फीड करके यू आर एबल टू गिव इट राइट प्रॉम्प्ट, तो आपको वो कुछ डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्डिंग करके दिखा सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट सारा खेल तो डेटा को समझने का है। हम सोचते हैं कि हमें पावर बीआई आ गया, सीक्वल आ गया, दैट्स हाउ वी आर हैविंग अ गुड करियर। सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज अ डेटा साइंटिस्ट। मैं सीधे तो डेटा साइंटिस्ट नहीं बन जाऊंगा। मैं कोई बहुत बड़ी प्रोडक्ट कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए, डेटा ऑफिसर बनने के लिए, there is a constant journey which I have to pursue through learning path. I have to keep on looking at what is technology. I'm self-learner. I'm doing a lot of analytics myself. I'm curious to solve problems. I love patterns. मेरा मैथ्स अच्छा है, स्टैट्स अच्छा है, उतना ही काफी नहीं है भाई। You have to do many things in your life to understand first and foremost as what data analytics looks like, right? Let's go next. I think now we understand a lot of us as personality, right? I'm analytically good. I'm curious. I am definitely good for SAP or finance or data analytics. I'm more people oriented. मेरे को लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, उनके पर्सनालिटीज को समझना अच्छा लगता है। मैं थोड़ा बिजनेस भी समझ जाऊं। आई एम गुड एट एचआर, दैट मीन्स, राइट, दीज आर सम पर्सनालिटी एंड पॉसिबल करियर ऑप्शंस। अगर मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे को वो एंटिटी रिलेशनशिप एज डेटा बहुत अच्छा समझ में आता है, मेरे को एक सिमेंटिक लेयर का अंडरस्टैंडिंग है, फ्रंट एंड क्या होता है ये समझना है, वो बात की बात है। एज व्हाट
एप्लीकेशन लाइक स्विगी डज, वो स्विगी जैसा एप्लीकेशन चलता कैसा है, वो तो पूरा सप्लाई चेन चला रहा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जोमेटो आपने देखा कितने सारे फीचर्स फंक्शंस को, तो जो बच्चा वो बिजनेस समझ जाता है। हमारे घर में एक बहुत मैंने होनहार बच्चा था, और मैं आपको उसकी भी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। देखिए उसको जब ग्रेजुएट हुआ, बड़ा ऑर्डिनरी बच्चा है, ठीक है, मेरा तो ही इज माई नेफ्यू। आई शेयर दैट विथ यू, वन मोर एग्जाम्पल। दिस गाय, यंग गाय, एंड विद इट इज हेयर। ये भाई साहब तो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुए, बड़े नॉर्मल बच्चे हैं यार, नथिंग स्पेशल। बट इनका पहली बार में इतने फोकस थे, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया मुंबई, और जैसे ही इनकी जॉब लगी, फर्स्ट जॉब ही गॉट इन अ कंपनी कॉल्ड एज क्वांट, एंड इनको पहला ही जॉब सीधे 60 lakhs का मिल गया, क्योंकि इनका एनालिटिकल एबिलिटी स्ट्रांग है। ये मुझे बोलते थे अंकल मुझे तो कोडिंग ही नहीं आती है, मुझे कहाँ से जॉब मिलेगी, जो कैंपस के लिए आएंगी वो तो कुछ भी नहीं होगा। कितने छोटे, इतना सारा उनको अपना ड्रीम करियर का जो ड्रीम था, दुनिया भर घूम रहे हैं, हमारे भतीजे हैं। हम उनसे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, एज व्हाट थिंग ही कैन डू, राइट। तो ऐसा 9 साल 10 साल वाला फॉर्मूला नहीं है, कोई लोग उसको, इतने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं उनके, कम एज में उनको बहुत सारा पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। जितना बड़ा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का एबिलिटी होगा, उतने अच्छे आपको। देखिए क्रिकेट में फिर से जाते हैं, लेट्स गो बैक टू क्रिकेट एंड अंडरस्टैंड, सम पीपल रिमेन इन दैट लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल, सम पीपल फॉर देयर लाइफ प्ले इन रणजी ट्रॉफी। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अच्छे नहीं थे स्किल्स, शायद कहीं वो शार्पनेस, स्पेशलिटी, वो उनको कहीं पे मिस कर गई। अपॉर्चुनिटी जब आती है जब आपके स्किल्स उस अपॉर्चुनिटी को मैच करते हैं, कोई गॉड गिफ्ट नहीं है भाई, राइट। दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गो नेक्स्ट, एंड मैं आज का सेशन कोशिश करूंगा कि यहीं पे क्लोज करेंगे। ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सनल कैनवस, what is our strength, what is our personality, what values, write your ikigai, understand your career anchor and a career fit। ये सारे चीजों में ना अपने लिए अपने अपने बारे में लिखिए खुद, और जरा माय करियर प्रोफाइल आप चैट जीपीटी से पूछ के देखिए, देखिए आपको क्या आंसर मिलता है। क्रिएट माय करियर प्रोफाइल एआई से पूछेगा, आई एम डैम श्योर। Urvi, if I remember, or maybe some other folks who are in this, they asked me many times these questions. Should I learn SAP? I said, no, please don't do that. Wait, there is no point of investing money. First, try to see what strength you have, what personality you are, what values you want to build, what is your ikigai, what is your career anchor. Do that career fit role for you in various things that you want to. Try and see options with the help of AI tool. Bring it all together. Make your personal career canvas. हम आगे भी समझेंगे next 3-4 days में. Maybe I'll do a session tomorrow after as a quick one to give you more perspectives. Maybe देखेंगे आप लोग Thursday, Friday में comfortable हैं. मैं भी थोड़ा tired feel कर रहा हूँ. मेरा दिन भर morning से early morning to evening I have my professional life. और उसके बाद आई एम कमिंग टू स्टे विथ ऑल ऑफ यू। आई नीड यू मोर इन नंबर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जिसको पिक्चर खींचना खींच लो, इसके ऊपर अपनी स्टोरी राइटिंग करना, हाथ से लिखना, उसके बाद वो पिक्चर्स डालना, देखना अपने एआई से पूछ के कि हाउ मच इट इज एबल टू आंसर यू, राइट। सो क्विकली आई जस्ट वांट टू पुट यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टाइप, maybe I'll straight away answer. I'm just opening the platform. I hope today is your personal career reflection, which I wanted to do. Let's go to next slide. Let's understand a bit more. Eliminate the problems, take decisions, right? Decision framework is always in these areas. If you go straight away, कि मैं वो SAP consultant, मैं straight away एक senior sales manager, मैं HR BP, ऐसा नहीं होता। That is how you have to invite that path step by step. And always remember this guys, वैभव सूर्यवंशी 6 साल की उम्र से शायद उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हम सब ने देखा है as how he has progressed.
और एक वो, मैं तो बहुत अच्छा एक लॉन टेनिस प्लेयर है, मैं शेयर करूंगा आपसे उसकी स्टोरी। मैंने आपसे 3-4 दिखाए, विदित दिखाया, कृष्णा से दिखाए, आपको विकास की स्टोरी शेयर करी, और मैं आपको कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा। मैंने अपने कॉलिग्स को बोला रिकॉर्ड करो, एंड वी वांट टू शेयर। सो हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट टुडेस सेशन इज बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एज पर्सनालिटी, राइट? कल समझेंगे करियर क्या है, जाएंगे, और आई एम श्योर यू लाइक इट। आई डिलीवर मोर, मेरे में एनर्जी आती जाएगी, मैं आपको बताते जाऊंगा। नेक्स्ट, so becoming a professional is how we have to understand as an Act 5. Last one, quick one, is not an easy job, but देखे नेक्स्ट, समझते हैं एक्ट 5, लास्ट है आज का। गोल बनाना है हमें, आउटकम, ये पिक्चर रखिए अपने पास, खींचिए इसको अपने पास, राइट? हमें गोल्स लिखने हैं अपने, व्हाट आई वांट टू अचीव, व्हाट आउटकम्स आई वांट टू सी, व्हाट आर द टास्क आई एम गोइंग टू डू फॉर दैट, am I owner and accountable or not, right? Please take this also, you will understand in every organization, अगर एक आदमी के पास ये वाले स्किल सेट्स मिल जाएं तो भैया वो लीडर है, वो सीनियर पोजीशन पे है, उसका करियर कोई नहीं रोक सकता। अकाउंटेबल और डिलीवरी एग्जीक्यूट करना जिस आदमी को आता है और लोगों के साथ मिलकर वो काम कर सकता है, वही अच्छा प्रोग्राम लीडर है। उसी को हम प्रोजेक्ट हेड, या कभी ऐसा बोलते हैं कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट करने वाला आदमी है, वही चाहिए हमको। एचआर हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, गवर्नमेंट हो, कहीं भी जाके यही प्रिंसिपल चलेगा। कीप दिस पिक्चर फॉर यू, राइट? आई ट्राई एंड शेयर वीडियोस, ये वर्कबुक में भी लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से वर्कबुक का क्यूआर कोड लास्ट में दिखाऊंगा। हैव दिस फॉर यू एज एन इंटरेस्ट, अंडरस्टैंड गोल्स, आउटकम्स, टास्क, these are something that you need to decide in your career, right? Unless आप अपना एक करियर निकालिए, जरा पूछिए एआई से, फिर हम मिलेंगे एक बार, हो सकता है 1-to-1 मिले, डिजिटली मिले, जैसे भी होगा वी विल कीप डिस्कसिंग, राइट? लेट्स मूव। तो व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, राइट? कम्युनिकेशन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कम्युनिकेशन का ट्रिक। व्हाट इज कंप्लीटेड, व्हाट इज ब्लॉक्ड, व्हाट आई नीड टू डू। कम्युनिकेशन अगर आप क्लियरली करते हैं अपने टीचर के साथ तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। अगर अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा प्लानिंग करके आप बात बताते हैं तो भी आपको प्रोफेशनल सक्सेस से ज्यादा फ्रेंड सक्सेस मिलती है। अगर आप लोग ऑर्केस्ट्रा की बात करें, मैं एक ऑर्केस्ट्रा की बात बताता हूँ। सिंपल है, आप सिंगर हैं पर आपको अपने ऑर्केस्ट्रा को लिरिक्स देना नहीं आता, तो आप सोचिए आप कुछ गा रहे हैं और किसी और ताल में वो अपना ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक बनना शुरू हो जाएगा। आपने कम्युनिकेट किया एक ऑर्केस्ट्रा में, प्लानिंग करी, प्रैक्टिस करी, देन ओनली यू कैन एग्जीक्यूट, राइट? सो समटाइम इन प्रोफेशनल सक्सेस वी ऑल नीड टू हैव one skill as an extraordinary skill which we call it as communication, right? Let's go next. Every week ये आपको अपने आप से आंसर पूछना होगा, अपने बारे में लिखिए, 10 मिनट लगाइए, 3 इंसाइट, 2 कैपेबिलिटीज गैप जो आपके पास प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसको आपको लगता है करना है, और अपने आप से कमिटमेंट करिए भाई। यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ कमिटमेंट विथ यू। टेक दैट वर्कबुक अगेन, प्रिंट आउट निकालिए, हाथ से लिखिए, मजा आएगा। यू विल एंजॉय दैट थॉरोली, राइट? लेट्स गो नेक्स्ट। अब हम कल करियर्स की डेप्थ में जाएंगे। कल या परसों मैं एक सेशन का अंडरस्टैंडिंग लूंगा अपने कॉलीग से। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू वर्क एज बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई प्रॉमिस आई विल स्पेंड अबाउट 5 आवर्स 7 आवर्स। मैं कोशिश करूंगा इस टाइम में आपको एंटरप्राइज करियर्स के बारे में समझाऊं। तो जो लोग एसएपी पूछ रहे थे, मैं कल इसलिए भी ब्रेक लेना चाहता हूं। आप लोगों को पहले अपने करियर के बारे में रिफ्लेक्शन लिखिए, थोड़ा सा एआई का हेल्प लीजिए, और मे बी आई विल आस्क ऑल ऑफ यू, मैं उन्हीं लोग को ये करियर समझाऊंगा जो मेरे को रिफ्लेक्शन सिर्फ ज्ञान से सुन नहीं रहे हैं, मेरे साथ पार्टिसिपेटिव होंगे। मैं आई विल नॉट इनवाइट एवरीवन टू डे 3, डे 4, डे 5। I only want to invite people who are serious, who actually want to now understand these enterprise career. उसके लिए हमें क्या करना होगा? With my experience,
and how we will be successful with all of that as a way forward in our life, right? So we'll discuss that enterprise career tomorrow. Till then, I'll putting my voice to rest with all of you. एक ही रिक्वेस्ट है, मैं वापस अपनी टीम को बोलूंगा वर्कबुक को फिर से दिखाते हैं एक बार. लेट्स सी दैट वर्कबुक ऑल ओवर अगेन. इस वर्कबुक में भी ये सारी बातें लिखी हैं. दैट स्टोरी दैट वी हैव शेयर्ड. एआई तुमने आज बहुत इजी समझा. रोज एक एआई का एग्जांपल करेंगे. प्लीज ये बुक को डाउनलोड कर लीजिए. मेरे को आपका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, इफ यू थिंक वी कैन हेल्प, वी विल आस्क यू टुमारो. मे बी विल आस्क यू कि आपने अपने बारे में रिफ्लेक्शन लिखा या नहीं. कुछ हो सकता है हम पर्सनली आपसे 5-10 मिनट बात करें. देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट डे. ये 2 दिन का वीडियो भी शेयर करने की एफर्ट होगी कल. आई विल लीव दैट एज अ ओपन स्पेस फॉर ऑल ऑफ यू टू डू सम काइंड ऑफ रेडीनेस. हो सकता है हम वो 5 दिन को 3 या 4 दिन में स्क्वीज करें और एक स्पेशल सेशन करें where you all have a great career ahead. That is what I promised all of you. Any questions that anybody want to ask? If you have any Q&A, I'm here for all of you. You can do that. Now, please start putting some appreciation. Understand that workbook is the most important thing that we need to have printed. As we are participating in this journey, the idea is a great career. Thank you so much, Manu sir, for all the valuable insight. So meanwhile, I'll just request the audience, request our participants to type your questions. Meanwhile, we have 2 or 3 questions. So the very first question that I would be reading is of Priyanshu. I hope Priyanshu is here. Yeah, Priyanshu. Yeah, so Priyanshu basically wants to know that getting the first job, how he can experience that as he's a fresher. So how he can grab his first job. So I know that is something like which has not been discussed, but I hope Manu sir is having all the answers of the question. Yes. So Yes. what I'll do tomorrow when we talk about enterprise career, right? Tomorrow or day after when we meet. First job is the most or the worst thing, right? सबको बहुत एक क्यूरियोसिटी होता है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, मैं इसमें बहुत सारे लोग देख सकता हूँ. वो कहते हैं मैंने सक्सेस फैक्टर का कोर्स कर लिया और आई शुड गेट एंड ब्रेक. आप प्लीज हेल्प कर दो. दैट इज व्हाट आई कीप गेटिंग आंसर्स. तो पहले मेरे को आपको ना थोड़ा सा करियर ग्राफ समझना होगा प्रियांशु. मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ. मान लिया हम सेल्स की पोजीशन में देखते हैं किसी को और मैं एफएमसीजी बिजनेस का हूँ. तो एक तो वो बोलेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कंघा बेच सकता हूँ, आई कैन सेल अ पेन, राइट? वी हैव हर्ड ऑल दीज स्टोरीज. वो एक ग्रेट वुल्फ वाली पिक्चर भी देखी होगी. सम पीपल वुड हैव सीन की he's selling that penny shares at speed, right? That is not true actually. अगर मेरे को सेल्स का जॉब करना है और मेरे को उसमें करियर एक्सेल करना है, वो फर्स्ट जॉब चाहिए. तो अगर आपको नेस्ले जैसे कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर क्या है, ये 3 चीज को अपने सीवी में रिफ्लेक्ट करना आता है और उसके बाद यू नो हाउ टू नेटवर्क. यू कैन डू मे बी सम काइंड ऑफ व्हाट वी टुडे कॉल इट एज सोशल ब्रांडिंग. जो दिखता है वो बिकता है, राइट? आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, राइट? आई एम थिंकिंग अ सेल्स करियर एंड वो कृष्णा सर इज एन आइडियल. 10 years I want to become a CEO और पॉसिबल है, राइट? इफ यू हैव टू थिंक एज एन एग्जांपल. और मेरे को तो ये कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री बहुत पसंद आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है. और अगर आपको सिर्फ उसके कस्टमर, उसके प्रोडक्ट और उसका सेल्स का पूरा प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग टू सेल्स और कस्टमर सर्विस क्या होता है, अगर आपको इतना सा काम अच्छे से आ जाए और वो आपके पर्सनालिटी और सीवी में रिफ्लेक्ट करेगा, अगर आप उस पर्सनालिटी के सारे गुण अपने पास रखते हैं, इफ यू हैव ऑल दोज थिंग्स एज इन, आई ट्रस्ट मी यू विल गेट योर फर्स्ट जॉब. बहुत बार मेरे को लोग बोलते हैं कि मेरे को सक्सेस फैक्टर में ब्रेक दे दीजिए, आई वांट टू बिकम एन एचआर कंसल्टेंट, आई हैव बीन रिक्रूटर फॉर ऑल माय लाइफ, प्लीज गिव मी दैट ब्रेक. और मैंने देखा उन्होंने कोई 50,000 रुपए खर्च किए, किसी ऑनलाइन ट्रेनर से कोई सक्सेस फैक्टर की ट्रेनिंग करी. लेकिन जब मैं उनको बहुत सिंपल स्ट्रक्चरली सवाल पूछता हूं
कि क्या आपको पीपल एम्पैथी समझ में आती है, क्या आपको एक बिजनेस में पीपल क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन पता है, उनको वो अंडरस्टैंडिंग की कोई क्लैरिटी नहीं होती और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सक्सेस फैक्टर कंसल्टेंट बन जाए। तो मैं आपके साथ ऐसे 4-5 लोगों की पर्सनालिटी को शेयर करूंगा, ऐसा क्या मैजिक उन्होंने किया, चाहे वो करियर रीस्टार्ट कर रहे थे, चाहे वो अपना फर्स्ट जॉब के लिए आए थे, दे गॉट वंडरफुल ब्रेक इन देयर लाइफ इन देयर फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुई, फेलियर्स थे, देयर वर एन नंबर ऑफ फेलियर्स, बट दे कुड मेक so much out of it, right? Again, I will request many of you can connect with me on LinkedIn. I'll put my DMs open for all of you. I'll try and answer those questions there also. You can search me on LinkedIn. You can see me there. We'll be sharing a video with you. Please write. That is what मेरे को यही तो सिखाना है आपको, फर्स्ट जॉब या करियर कैसे मिले. That is what I am here for, right? I'll try and help all of you. एक्जेंशिया एकेडमी का भी लिंक्डइन पेज है, वहां से भी हम कनेक्ट करेंगे, या मेरा पर्सनल पेज लिंक्डइन में मनोज गुप्ता देखेंगे, मैं आप लोग को अपनी फोटो दिखाता हूँ। वैसे तो वी आर ट्राइंग अ लॉट, दिस इज मी, हाय, सम ऑफ यू रिकॉग्नाइज मी, विल मीट, विल टॉक इन डिटेल। तो एसएपी सीखना इज नॉट द ऑप्शन, फर्स्ट व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट इज योर पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन, व्हाट यू थिंक यू वांट टू डू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? इफ वी नो दैट वेल, आई कैन। एक बच्चे ने मुझे बोला मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, राइट? अरे मैंने बोला भाई तेरे को आज बिजनेस समझ नहीं आ रहा है, तेरे को उसका प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं, कैसे वो कस्टमर्स एक्वायर करता है, ग्रोथ क्या होता है, तो किसी का पैसा, वो बैंकिंग इंडस्ट्री का मेरा पैसा मान लिया मैं तेरे को 50 करोड़ रुपए दूं और तू मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकर है या रिस्क एनालिस्ट तू कभी बना नहीं, कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर? Never, right? Sometime young IIM graduates or IIT graduates get the first opportunity because their ability to solve problem and the career passion that they have together. वो इतने सारे फेस्ट में जाते हैं, इतने मजे करते हैं आईआईटी में। आप ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा मजे का जो प्लेस है ना, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जहाँ सबसे कम कोडिंग होती है, वो आईआईटी है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू, और इंडिया के जो टॉप नॉच सीईओज हैं वो आईआईटीएंस के होते हैं। क्या वो बहुत अच्छा कोडिंग करते हैं? इसलिए होते हैं। विल अंडरस्टैंड दैट। तो करियर कैसे एक्सप्लोर होता है, ग्रोथ क्या होती है। बहुत बार लोग स्टक हो जाते हैं 12-15 लाख में 5 साल और कहते हैं यार 24 लाख में भी मेरा इतना सही पैकेज है। ऑल दैट प्रॉब्लम्स आर देयर, सो विल टॉक अबाउट दैट मोर इन आवर नेक्स्ट सेशन, बट आई वांट बिफोर वी स्टार्ट, विल कम बैक पर्सनली टू यू। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने वो पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन किया या नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझको पूछते हैं, मैंने एक बच्चे का नाम लिया, वो क्यूए एनालिस्ट है, वो मेरे को बड़े उससे पूछते हैं कि मेरे अंकल ने बोला आई वांट टू बिकम एसएपी कंसल्टेंट। मैंने बोला बेटा रुक जा, फर्स्ट सी व्हाट यू आर गुड एट, डोंट ट्राई टू रश। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट गारंटिंग अ जॉब, इट इज अबाउट यू एज अ पर्सनालिटी फर्स्ट, व्हाट यू आर गुड एट, राइट? व्हाट यू थिंक एज योर ड्रीम, what you want to do is most important for us. Thank you guys. I'm ending this session. Thank you. We are bang on time. I thought 8:15 is the closing time. Interact with us. Give us opportunity to give you help. This is the time actually I am available. बहुत सारे लोगों को पता है मैं तो फोन भी नहीं उठा सकता. That is the kind of life I have. I'm trying to take my time out. Want to give you maximum. Take care. Thank you. Bye-bye. Good night. See you again. But do complete that workbook. Print out निकालिए, हाथ से लिखिए. Then only we can help each other. आप जिस पर्पज से आए ना वो आपको मैं बता दूं, अगर मैं किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में ये काम करूं तो मेरे को 1 घंटे के 50,000 रुपए मिलते हैं। इतना सारा मेरे को वो पैसा अर्न करने का अपॉर्चुनिटी है। बट आई वॉन्टेड टू मैक्सिमाइज दैट व्हाट आई नो, लेट दिस बी नोन टू सो मेनी ऑफ यू। Take care. Thank you. Leaving with one reflection to all of you. I trust सब लोग वो प्रिंट आउट निकालेंगे, उसमें पेन से लिखेंगे, कल हम दोबारा व्हाट्सएप मैसेजिंग करेंगे, ईमेल करेंगे। We'll see to connect with each other. Maybe एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, then we connect again. Let's see where we reach to. YouTube जिनका फर्स्ट सेशन मिस हो गया,
उनको वो वीडियो शेयर करेंगे, दोबारा अपना रिकैप करिए, गेट रेडी फॉर द एक्साइटिंग जर्नी एज योर फर्स्ट जॉब, एज योर करियर. I promise you will have the proud feeling that you have invested your time. 5 घंटे 7 घंटे खुद से बात करिए, 5-7 घंटे हम यहाँ पे सेशन में इन्वेस्ट करेंगे. You'll have a great career. कोई MBA सोचने की जरूरत नहीं है इतना एक्सपेंसिव. दैट इज नॉट द अदर थिंग. मैंने आपको बहुत सारे लोग दिखाए जो 15 साल बाद उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया. आई होप दैट इज मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. गुड नाइट. Leaving you with good thoughts. See you again. Bye bye. Thank you, everyone. So we are signing off. So as Sir said that we will be taking up the questions in the next session, and I hope you would be ready with your another round of questions so that all the questions can be answered by great Manoj sir. Thank you, everyone. Thanks for a wonderful participation. Stay tuned with us for the next sessions. Thank you so much. Till the time, please look up the channel and do fill the feedback form.